So today is lecture number 15, June batch. Today is the 15th of May, 2021, and we are on the chapter of electrostatics, standard 12th, physics. So in the previous lectures, we found out, we were learning about what is potential difference. We learned about the formulas that is related to potential difference. We went on to find out the relation E is equal to minus dV by dr, which is a very important formula. The negative sign indicates that as the electric field goes on increasing, the potential decreases. Then we went on to find find out the line integral. And when do we use the line integral? Whenever it is varying electric field, or when the electric field is changing, or non-uniform electric field. Then we went on to find what is the potential related to the source. That is when we got the exact formula. That is related to 1 upon RA minus 1 upon RB. Then आगे जाके हमने potential at a point ढूंढा, because we were finding out infinity to B. यानी कि हमें अभी पता है कि the potential is 0 when a charge is brought from infinity to a particular point. Then the potential at r equal to infinite will be considered as 0. After that, we went to define that the potential of a point का definition हमने लिखा, which is work done upon charge from infinity to that particular point, that is A in this case. Then we found out the potential energy of a charge in an electric field. We found out what is the potential energy. We defined it as the product of charge into potential. That was the electrostatic potential energy. Then we found out for a system of charges, if there are 3 charges, then we'll have 3 separate terms. And if we have 4 charges, then we have 6 terms that we will have for our electrostatic potential energy. यानी कि पेयर में लेना है आपको, Q1, Q2, Q1, Q3, Q1, Q4, ऐसा पेयर में लेना है आपको. So then we define the energy stored in those 4 charges. So we know the electrostatic potential energy of a system of charges. Then we came out to a shell. We were studying a shell where we found out potential due to charge distributed on the outer surface of the shell. ये जो हम कंसिडर कर रहे हैं, ये कंडक्टिंग स्फीयर करके आप ले सकते हैं. अगर नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर चार्जेस भरा होगा, अगर नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर चार्जेस भरा होगा. सो देन वी वेंट टू केस 1 जहां पॉइंट आउटसाइड था. फिर हमने देखा कि आउटसाइड इट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन स्मॉल r. फिर हमने सरफेस पे देखा जहां पर हमने स्मॉल r को कैपिटल R सब्स्टिट्यूट किया. और फिर हमने इनसाइड देखा जहां पर चेंज हमारा 0 है बट v हमारा कांस्टेंट है. फिर हमने v इनसाइड देखा जहां पर हमें कांस्टेंट मिल रहा है. इट इज आल्सो इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इनटू कैपिटल R. Now, so this is our graph, which is a variation of potential versus R. This is we have studied, and that's where we end in the last lecture. So I hope you remember this much, that we have reached this particular point where we have looked into the aspect of the shell as well. So today we are going to look into the potential. हम लोग potential हर तरीके से पढ़ रहे हैं. यानी कि potential due to a source, we have to potential due to a system of charges. So हर तरीके से हम potential को जो है explore कर रहे हैं, right? So today आज का जो derivation है उसका heading आप लिख सकते हैं. आज का जो derivation है उसका heading होगा electric potential due to electric dipole. Electric potential due to electric dipole.
So we are already, we remember the electric dipole. If you remember, it can be polar or it can be non-polar in nature. I hope everyone remembers what was electric dipole. Yeah. So just give the heading. I need to change the PowerPoint slightly. So can you please take down the heading? Electric potential due to electric dipole. Then I need to change the slide a bit. So I will have to reconnect. Done? Okay. Just give me a minute. Is the screen visible? Okay. So this is our heading, that is electric potential due to an electric dipole that we are looking into it. So what is a dipole? I'm sure everyone remembers what is a dipole. 1 minute, children, 1 minute. Sorry, I have 1 minute. Just give me a minute. Sharing the screen now. Visible? All okay? Sharing the screen now. Visible? I cannot see it. Now? All okay? Okay, so if I'm going to define electric dipole, which everyone of us have already done in the 11th standard, we are completely aware of what a dipole is. We have studied further in 12th standard about polar and non-polar substances. We had studied the electrostatic series.
So whenever we talk about a dipole, we are basically talking about minus q plus q charges. Yes or no? It could be a particular molecule which is separated by a distance of, if you see the definition on the left side, separated by a difference of 2L. And the dipole moment का जो direction था, anybody remembers what is the dipole moment direction? It is always directed from minus to plus, not south to north. This is electrostatics. Negative to positive. And the formula was nothing but P bar is equal to Q into 2L bar. I hope you remember this formula. So this was the formula that we had taken into consideration. And if you know the line that is joining, the line that joins these charges, this is called as the axial line. What is this line called as? This is called as the axial line. And from the center of the dipole, we always draw from the center of the dipole, the perpendicular bisector is called as the equator. The perpendicular bisector is called as the equator, equatorial line, and this line which is passing through minus and plus is called as the axis or the dipole axis. And the straight line which is drawn perpendicular to this axis, this is called as the equator. So we had the equator and we had the axis, similar like we studied a similar concept in magnetism when we are talking about South pole, North pole of a bar magnet, or we used to call it as a short dipole magnet, right? So we have minus q and plus q, which is separated by 2L. We have an axis. We have the perpendicular to the axis, which is called as the equator of the dipole, and separated by minus q and plus q is nothing but 2L. So I hope you remember this. This was all about your dipole. So today's derivation is to find out what is the electric potential due to this electric dipole. Our derivation is concentrated on what is the electric potential due to an electric dipole. If I'm not mistaken, it's on page number 191, 192 of the textbook. But I have divided this into 3 parts so that you will understand what derivation they have given over there. So to understand the first part of the derivation, I have modified it slightly so that you will understand better. So call it as derivation number 1. Call it as derivation number 1. Okay, so the electric potential ka jo derivation hai, I am doing it in this way. So suppose you have a minus q charge here and you have a plus q charge here. एंड इसका जो लाइन ज्वाइनिंग है, आई एम जस्ट ड्रॉइंग दिस लाइन, ये हमारा कौन सा लाइन है? ये हमारा एक्सियल लाइन है, एक्सिस है. इन दोनों के बीच का जो सेंटर होगा, हम यहाँ पर सेंटर पकड़ लेते हैं O, which is the center of this dipole minus q and plus q. From the center, okay, I'm taking some point along the axis. Let me call this as sorry, point P. Point P is at a distance of r from the center. तो ये distance r है. अगर मैंने आपसे पूछा कि what is the distance between minus q to p, what will be your answer? If I ask you what is the distance of minus q to p, what will be your answer? Because हमें पता है, यहाँ पर जो चीज मैंने नहीं लिखा है वो O2 minus q L होता है, O2 plus q भी L होता है, इसलिए दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस क्या होता है? ये टोटल 2L होता है. So can I say that between minus q and p, the answer is going to come as r plus L. चलेगा? R plus L, क्योंकि O तक तो R है, P से लेके O तक तो R है, I can say it is R plus L. Similarly, can you tell me what is the distance between plus Q and P? Can you tell me what is the distance between plus Q and P? O से लेके यहाँ तक R है और O से लेके plus Q तक जो है, so this is, can I say it is R minus L, है कि नहीं? R minus L, और वहां से लेके जो दूर तक है वो R plus L है. So I have
written all the distances. So we have taken a point P. So P का जो distance है from the center. So point P जो है, point P is at a distance of, the point P is at a distance of R from center, right? And from minus Q it is R plus L, and from plus Q it is R minus L. So I can define what is the potential at minus Q की वजह से P पर कितना potential है. So V, the potential due to the charge minus Q, is going to be nothing but 1 upon 4 pi epsilon naught. Can I write it as minus Q because मेरा charge negative है, upon the distance is R plus L. This is the potential due to negative charge. And what is the potential due to positive charge? The potential due to positive charge is 1 upon 4 pi epsilon naught. I can write it as plus Q upon nothing but R minus L. ये मेरा आंसर रहेगा. Yes or no? So I will get the answer for V due to minus Q and V due to plus Q. But I am interested in the net potential at P. मतलब minus Q की वजह से P पर कितना potential calculate होगा, plus Q की वजह से कितना होगा. मतलब this is my first point of the derivation where I have defined the potential due to the negative charge minus Q and the potential due to the positive charge. I hope this is clear. अगर मुझे net potential ढूंढना है, so in the second point, the net potential at P. The net potential at P. So the net potential at P is going to be nothing but V due to plus Q plus V due to minus Q. ये मेरा net potential होने वाला है. दोनों लेना पड़ेगा. So what is V due to plus Q? It is nothing but Q upon 4 pi epsilon naught. Can I take it common? चलेगा? Positive Q का क्या था? 1 upon R minus L plus, can I say 1 upon R plus L? मैंने Q upon 4 pi epsilon naught को common ले लिया दोनों केस में. बट इसमें से एक नेगेटिव है. कौन सा वाला नेगेटिव है? इसमें से जो माइनस Q वाला है वो नेगेटिव वाला था. सो यहाँ पर माइनस आएगा. आई होप दिस इज क्लियर. क्योंकि हमारा जो ये वाला है, किसके पास R plus L है, उसके पास माइनस Q है, पहले वाला. तो जब हम वो पहले वाला लिख रहे हैं यहाँ पे R plus L, तो उसके साथ वो नेगेटिव साइन अंदर चला जाएगा. ये क्लियर है एवरीबॉडी? शुड आई राइट इट सेपरेटली? आई कैन राइट इट हियर ऑल्सो. जिसको नहीं समझा होगा, 1 upon 4 pi epsilon naught, 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R minus L minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R plus L. I hope now it is clear. तो ये जो है, ये जो हमने माइनस कंसिडर किया है, उसको लेना पड़ेगा हमें. अभी क्लियर हो गया? तो 1 upon 4 pi epsilon नॉट जो है वो बाहर ले लिया, तो हमारा अंदर ऐसा कुछ दिखेगा. ठीक है, तो हम इसको अभी सॉल्व करने वाले हैं. तो ये क्या आएगा यहाँ पर? Q upon 4 pi epsilon नॉट, ब्रैकेट के अंदर क्या हाल होगा? न्यूमरेटर में R plus L माइनस R minus L अपॉन डिनोमिनेटर में a plus b into a minus b हो जाएगा. दैट इज R square minus L square. क्लियर चिल्ड्रन? R square minus L square डिनोमिनेटर में आएगा. So this is 4 pi. So this will become Q upon 4 pi epsilon naught. What will happen inside the bracket? R plus L R plus L minus R plus L. एक मिनट. My pen is not working properly.
plus L upon R square minus L square. So I can cancel out R and minus R. So I'm getting numerator में 2L. So what will I get the net potential? The net potential I'm getting as total potential is equal to, at the point P, is 1 upon 4 pi epsilon naught. I'm getting it as 2L upon R square minus L square. ऐसा कुछ मिल रहा है मुझे? Q कहाँ गया? Q है ना बाहर? Yes. So अभी ये जो मुझे मिला है, ये पॉइंट किधर है? ये एक्सियल पॉइंट पे है. That means it is along the axis. इसलिए I can write it as V suffix of axis also, right? Okay, anybody who can tell me what is this 2Q into L? What is this 2Q into L? Very good, Manav, Bhakti, दिव्या, साहिल, मीत, सब लोग बोल रहे हैं कि ये P है, मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है. तो ये हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर. यस और नो? ये हमारा V एक्सिस वाला फॉर्मूला है. V axis is P upon 4 pi epsilon naught R square minus L square. But R और L में, as usual, R और L में कौन बड़ा है? R और L में कौन बड़ा है? R is obviously greater. If you remember, we have done similar derivations. So R is greater than L. So therefore, R square is greater than L square. So we neglect L. हम L को क्या करते हैं? निग्लेक्ट करते. तो हमारा पोटेंशियल अलोंग द एक्सिस, पॉइंट P कहाँ है? एक्सिस पर है, डाइपोल के एक्सिस पे है. तो डाइपोल के एक्सिस पर कोई भी आप पॉइंट लेंगे तो आपका पोटेंशियल जो आता है वो आता है 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर. ये हमारा फॉर्मूला है पोटेंशियल का. अगर आपको याद है, किसी को याद है, अगर मैंने इसको कंपेयर किया ई एक्सिस से, 11th में किया था हमने, ई एक्सिस का डेरिवेशन में क्या डिफरेंस है? अगर आपको याद है, ई एक्सिस हमें आ रहा था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब. आई डोंट नो हाउ मेनी रिमेंबर दिस. ई एक्सिस के फॉर्मूला में इट इज 2p अपॉन r क्यूब. 2p अपॉन r क्यूब आता है, जबकि v एक्सिस के फॉर्मूला में p अपॉन r स्क्वायर आता है. सो ये डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए कि हम क्या ढूंढ रहे हैं. क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रहे हैं? क्या हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ढूंढ रहे हैं? हम किसको ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं? आई होप यू गेट इट. So let's go back to this thing and please copy down derivation number 1, slide number 4. Please take it down.
Is it completed? Please tell me when it is completed. Slide number 4. Slide number 5. Done. R minus L किधर? अथर्व, कौन सा R minus L बेटा? हाँ मतलब ये V ऑफ पॉजिटिव Q है ना, तो पॉजिटिव Q के नीचे R minus L है ना, और V ऑफ माइनस Q के नीचे R plus L था. पहले पॉइंट को देख लो अब. यहाँ पर माइनस Q के पास R plus L है और प्लस Q के पास R minus L है. यही है ना तुम्हारा फोर्थ स्टेप. स्लाइड नंबर 4. स्लाइड नंबर 4 ये है. साहिल, हो गया? स्लाइड नंबर 5 सबका कंप्लीट है. स्लाइड नंबर 5 सबका कंप्लीट है. ओके. आदित्य, देवेंद्र, खुशी. स्लाइड नंबर 6. स्लाइड नंबर 6. Completed everybody? Yes. So whatever you have just seen is nothing but the potential at a point along the axis. Derivation number 2, which is a very small derivation. Derivation number 2. I'm taking the point P
point P along the equator. I'm taking the point P along the equator. इक्वेटर पे ले रहा है. सो अगर ये मेरा माइनस क्यू है, ये मेरा प्लस क्यू है, आपको ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? यहाँ L है, यहाँ L है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है. ये सेंटर O है, मैंने यहाँ पर उसका जो इक्वेटर है उस पे पॉइंट लिया है. सो लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज M. फिर मैंने अपना कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन M2 माइनस क्यू, ज्वाइन M2 plus Q, and the distance of M from the center is nothing but R, because I have taken the point M. Oh, I have taken the point P. Sorry. I've taken the point P, which is at a distance of R from the center, and this point P lies along the transversal line or the equatorial line or the perpendicular bisector of the dipole. अब मैं वापस चालू कर रही हूं मेरा V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर क्या असर होगा? 1/4πε0. चार्ज हमारा पॉजिटिव है, प्लस Q. आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ प्लस Q टू P? प्लस Q टू P ये डिस्टेंस कितना है? हु विल टेल मी? प्लस Q टू P कितना है? अगर ये L है और अगर ये R है, तो प्लस Q टू P का डिस्टेंस कितना होगा? Who will tell me? प्लस Q टू P का डिस्टेंस कितना होगा? वेरी गुड. You should get R square plus L square raised to half. चलेगा? या मैं लिखूं रूट, अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर नहीं होगा ना, it will become under root of, क्योंकि I want one distance, so it is only R, so it is under root of R square plus L square. Yes or no? R square plus L square. Now what is V of minus Q? What is V of minus Q? 1/4πε0. 1/4πε0 क्या आएगा यहाँ पे? माइनस क्यू. अब मुझे बताओ माइनस क्यू और पी के बीच का डिस्टेंस क्या है? माइनस क्यू और पी के डिस्टेंस सेम है या डिफरेंट है? सेम है, तो यहाँ पर भी सेम ही आएगा ना, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. तो यहाँ पर भी सेम आएगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. आई होप यू नो, बिकॉज हमारा पोटेंशियल के फॉर्मूला में R है, बिकॉज V क्या है? V is Q/4πε0 R. R is the distance, इसलिए वो अंडर रूट ही लेना पड़ेगा आपको, राइट? अभी आप मुझे बताओ नेट पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करते हैं हमेशा नेट पोटेंशियल के लिए? नेट पोटेंशियल अलोंग द इक्वेटर इज V of plus Q plus V of minus Q. Mitali, you have just arrived or did you get disconnected? So V of positive charge, the potential due to positive charge with the negative charge, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? देखते हैं किसका दिमाग चलता है. क्या मिलने वाला है नेट? अगर आप 1/, आपके बुक में करके देखो क्या मिलेगा आपको? 2 times मिलता है. Are you sure? You are getting 1/4πε0 Q upon minus Q/4πε0 R square plus L square. वेरी गुड अंजलि सेतु. अंजलि को मिल गया है. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे फाइनल आंसर बताएं क्या आ रहा है. What's the answer, guys? June batch. Isha is getting a very big answer. बच्चा दोनों को ऐड करो, एक क्या होगा? दोनों में क्या फर्क है? दोनों सेम है, अलग है, क्या है? 1/4πε0 ऐड करना है. आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग. मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हैं. मेरे हिसाब से तो नेट वी टोटल जो मुझे मिलना चाहिए, इट इज, आई एम जस्ट कॉपिंग व्हाट आई हैव रिटन हियर, Q/4πε0
अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. मुझे नहीं पता आप लोगों को वो सारे कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स जो लोगों ने टाइप किए हैं वो कैसे आया. द आंसर इज यस विनायक, सौरभ मिश्रा. आंसर इज सबको आना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि सबको आए. यस तक्षिता, भव्या, अंजलि को पहले ही क्लिक हो गया था. अरे भाई एक पूरा पॉजिटिव है. ये देखो ये दोनों सेम है कि नहीं, ये भी सेम ये भी सेम. क्यू क्यू सेम, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सेम. सिर्फ एक प्लस है दूसरा माइनस है. तो व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज 5 minus 5, व्हाट इज 5 minus 5, what is 5 minus 5, 0. Then what is this minus this? Oh my god. June batch concentration, आंसर क्या है 0. अगस्त बैच ने मेरे को 1 सेकेंड में बताया सबने. आंसर विल बी 0 बेटा. क्या है उसमें, यहाँ पर डिस्टेंस अलग नहीं. अभी प्रीवियस केस में कैसा था, आर माइनस एल आर प्लस एल दोनों डिनोमिनेटर अलग था ना दोनों का, जबकि यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर भाई सेम है, सब कुछ सेम है, डिस्टेंस इज सेम. सो आंसर क्या आना चाहिए, पोटेंशियल इज 0, पोटेंशियल इज 0. इसका ये मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एट अ पॉइंट अलोंग द इक्वेटर विल ऑलवेज बी 0. So I'm going to write this as V at a point along the equator is 0. Right? This is derivation number 2. Please take it down quickly, everybody. Please take it down quickly. सत्यम यादव आप अभी ज्वाइन हो रहे हो. सत्यम यादव अभी आप ज्वाइन हो रहे हो या आप डिस्कनेक्ट हो गए थे बेटा. सत्यम यादव, Satyam Yadav, respond in the chat box. Please take down slide number 7. Completed? Okay. Slide number 8. Slide number 8. Atharva, we are looking at dipole. We are not looking at a single charge. हम dipole का देख रहे हैं. Dipole के axis के along potential कितना होगा, डाइपोल के इक्वेटर के अलोंग कितना होगा, ऐसे ही देखा हमने. डाइपोल है जो आप बोल रहे हो वो यहाँ वैलिड नहीं है. डन हो गया ये. तो हमने देख लिया कि यू नो व्हाट इज द पोटेंशियल अलोंग एनी पॉइंट अलोंग द एक्सिस, और हमने देख लिया कि व्हाट इज द पोटेंशियल अलोंग द इक्वेटर. ये दोनों केसेस हमने देख लिया.
अब हमें देखना है कि कहीं पर और लिया तो, मतलब सिर्फ एक्सिस और इक्वेटर पे थोड़ा ना होता है, हम कहीं पर भी ले सकते हैं. सो डेरिवेशन नंबर 3, पोटेंशियल at any point. Potential at any point. Potential at any point due to electric dipole. Due to electric dipole. मैं चाहती हूं कि आप डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करें. पहले हम लेंगे माइनस क्यू और प्लस क्यू एज ऑलवेज. ये मेरा माइनस क्यू है, ये मेरा प्लस क्यू है. दे आर सेपरेटेड. दिस O इज द सेंटर. मैंने एक पॉइंट M लिया है. आई एम टेकिंग द पॉइंट एज M. So that point M is here. It is not on the axis. It is not on the equator. I'm taking it as M point. I'm joining, okay, from the center to M. From the center to M, the distances are. तो आपको भी ऐसे ही ड्रॉ करना है. From the center to M, it is R. Then from minus Q to M, join the line. Join the line from plus Q to M also. Join the line from minus Q to M as well as plus Q to M. Okay. In other words, ये जो M है, it is making some angle theta with the dipole. It is making some angle theta with the dipole. अब हमने ये कहीं पर भी लिया है, ना ये पॉइंट एक्सिस पर है, ना ये पॉइंट इक्वेटर पे है. It is randomly at some point. Now see the construction I am doing. I want everyone to do the same. हम एक कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं. ड्रॉप अ परपेंडिकुलर. आई एम गोइंग टू टेल यू एन एग्जांपल बिफोर आई डू दिस. सपोज हमारे पास दो लाइन है, एक छोटा लाइन है और एक बड़ा लाइन है. मतलब मैं दे रही हूँ 0 to 1 और से 0 to 2, ऐसा दो लाइन है. मैंने आपको पूछा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, मतलब ये कितना लंबा है. 2 वाला जो लाइन है 0 to 2, या आई विल गिव यू सम अल्फाबेट्स A and B. ओ बी जो है वो ओ ए से कितना लंबा है. तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ओ बी को मेजर करेंगे, फिर आप ओ ए को मेजर करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे आप. बराबर है. ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ. अगर दो लाइन है जिसके बीच का एंगल बहुत ही छोटा है और मैंने दो लाइनें आपको दे दी, यानी कि दिस यू कैन यूज इन वेव ऑप्टिक्स एंड अदर थिंग्स ऑल्सो. तो मैंने अगर आपको पूछा तो आप क्या बोलेंगे, ओ बी माइनस ओ ए. करेक्ट. आप क्या बोलेंगे, आप नॉर्मली बोलेंगे ओ बी माइनस ओ ए ले लो. Another way in physics, what we do, or mathematics, what we do is we drop the perpendicular. बराबर है. We drop a perpendicular और हम स्केल में इतना मेजर कर लेते हैं और हमें आंसर मिल गया. What do we do? We always drop a perpendicular. So जो भी बचता है वही आपका आंसर है, वही उसका डिफरेंस है. Are you understanding? ओ ए मेजर करके फिर ओ बी मेजर करके फिर ओ बी माइनस ओ ए निकालने से अच्छा एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और आपको आंसर आ गया. यू गेटिंग इट. अब वो फंडा हम यहाँ यूज कर रहे हैं. ये जो Q से, ये जो प्लस Q है अपना, वहां से ये देखो ओ एम का लाइन, कैन आई से इज ग्रेटर देन, कैन आई से इट इज ग्रेटर देन, ये मान लो ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है. तो क्या हम बोल सकते हैं ओ एम का लाइन बड़ा है कंपेयर टू बी एम? यस और नो? ओ एम का लाइन जो है वो बड़ा है. इफ यू वांट आई विल जस्ट ड्रॉ इट अ लिटिल मोर क्लियर. जस्ट अ मिनट. ये मेरा माइनस क्यू है, ये मेरा प्लस क्यू है. दोनों के बीच मेरा सेंटर जो है वो O है. यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया है. लेट्स से दिस पॉइंट इज M. आई एम जॉइनिंग O to M. It is R. Then I am I'm joining M to this point and I'm joining this to this point. I am calling this point as A point जहां पर मैंने माइनस क्यू रखा है. I am calling this point as B point जहां पर मैंने प्लस क्यू रखा है.
अब मेरा क्या पूछना है आपसे कि ओ एम जो है, कैन आई से ओ एम जो है वो एंगल बना रहा है थीटा विथ द एक्सिस। तो ओ एम लंबा है। अब मैं हम क्या करेंगे, वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, सी द कंस्ट्रक्शन, वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम प्लस क्यू टू दिस, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने। जैसे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ लेफ्ट साइड पे, आप देखिए कैन आई से ये पार्ट और ये पार्ट सेम हो गया। जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इसका मतलब वो जो ऊपर वाले दो पार्ट से वो इक्वल हो गए, यस और नो। यानी कि कैन आई से कि अगर ये एन पॉइंट है, कैन आई से दैट नाउ एम एन एंड बी एम आर इक्वल। जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तब हमें क्या मिलता है कि एन एम और बी एम हमारा क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? सिमिलरली आई एम डूइंग इट फॉर नीचे का पॉइंट, ध्यान से देखना नीचे का पॉइंट। मैं ये इसको खींच रही हूँ, यहाँ पर इसको खींचा मैंने, इसको आप नीचे की तरफ खींचो, ये वाला जो लाइन है इसको नीचे खींचो और आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो यहां से, यहां से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो नीचे की तरफ, इस तरीके से ड्रॉप कर रहे हैं कि यहाँ का जो एंगल है ये भी थीटा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थीटा है, राइट। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं और ये पॉइंट को हम क्यू बोलेंगे। सो आई हैव टेकन अ पॉइंट देयर, आई हैव टेकन इट एज क्यू। सेंटर है हमारा ऑलरेडी ओ, ओ हमारा सेंटर है और हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। सो यहाँ पर मैंने वो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। ओके, सो आई होप यू कैन सी दिस, दैट परपेंडिकुलर हैज बीन ड्रॉप्ड। जैसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, कैन आई से ए एम और क्यू एम इक्वल हो गया? कैन आई से ए एम और क्यू एम, ये जो लंबा सा लाइन है यहां से लेके यहां तक का जो लाइन है वो दोनों इक्वल हो गए? कैन आई से दैट? कैन आई से दैट? आई कैन से दैट द point AM and the point QM have become equal. Got the construction, everybody? So R is basically the position vector and theta is the angle of elevation. So theta is nothing but the angle of elevation. थीटा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि कितना, मतलब कितना एंगल बना रहा है, इज द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड आर इज नथिंग बट द position vector. R is the distance basically, so R is nothing but the position vector of the point from the center of the dipole. So R is the position vector which is nothing but from the point to the center of the dipole. I want everybody to take down this diagram first. Everyone, can you please take down this diagram? The angle is very small, Saurabh. Yeah, angle इतना बड़ा नहीं है बेटा. You're talking about a dipole. A dipole is a miniature kind of a thing, right? Yeah, yeah. We have to write all the variables, all the alphabets, all the naming करना ही है. Saurabh Mishra, हम जो पॉइंट ले रहे हैं, हम जब डाइपोल की बात कर रहे हैं तो वो जो डाइपोल होता है वो बहुत मिनिएचर होता है बेटा. इसको हम लोग मैग्नीफाई करके ड्रॉ कर रहे हैं ना. नथिंग इज वायलेटिंग एनी रूल. We are not violating any rule. We are going as per the rule.
Is it completed everybody? Everyone has this diagram. So अभी मैंने अगर आपको पूछा what is the V or the potential due to positive charge, तो आपका आंसर क्या रहेगा? What is the V due to positive charge? तो आप क्या लिखेंगे आपके नोटबुक में? V due to positive charge is nothing but 1/4 pi epsilon naught. क्या लिखेंगे? Q upon BM. Agreed? 1/4 pi. R1 कुछ नहीं है ना यहाँ पे, R1 R2 कुछ नहीं है यहाँ पे, BM है. And what is V due to negative charge? V due to negative charge is 1/4 pi epsilon naught. क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? Minus Q upon AM. Do you agree? है कि नहीं? एक का डिस्टेंस प्लस Q से M होगा, दूसरे का डिस्टेंस माइनस Q से M होगा. अच्छा, यानी कि अपना जॉब क्या है? किसको ढूंढना है अभी? क्या हमारा मेन हेडेक क्या आने वाला है कि हमें पहले तो ये BM और AM ढूंढना है. हमें तो पहले BM और AM ढूंढना है. ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट. अभी मैं ये डायग्राम को जरा छाप लेती हूँ यहाँ पे. तो ये जो डायग्राम मुझे मिला है यहाँ पे, अब इस डायग्राम को अभी बड़े ध्यान से देखो. कैन यू सी अ ट्रायंगल हियर? कैन यू सी अ ट्रायंगल हियर? कैन यू सी दिस ट्रायंगल? ट्रायंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? ONB या OBN. कैन यू सी द ट्रायंगल OBN? ऐसा एक ट्रायंगल दिख रहा है, सबको दिख रहा है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री है यहाँ पर, जिसका यहाँ पर ये O है, ये N है और ये B है. तो O और B के बीच का लेंथ L है. कैन एनीबडी टेल मी, कैन आई फाइंड ON? कैसे निकालेंगे ON? एनी आइडिया? ये एंगल थीटा है. मैंने अगर आपसे कहा कि मुझे ON चाहिए तो क्या हो सकता है? व्हाट इज कॉस ऑफ थीटा? व्हाट इज कॉस ऑफ थीटा? व्हाट इज कॉस ऑफ थीटा? कॉस थीटा, पाइथागोरस को गोली मारो. कॉस थीटा बताओ, ट्रिगो बताओ. Don't tell me adjacent upon hypotenuse. Look at the triangle and tell me what it is. What is cos theta? I don't want adjacent upon hypotenuse. I want look at the triangle and tell me what should I write. Cos theta क्या होगा? Cos theta होगा ON upon hypotenuse, that is OB, and it is ON. What is OB? What is OB? OB क्या है? L है. So can I say ON is L cos theta? Can I say ON is L cos theta? अच्छा, अगर आपको ON मिल गया है, ON मतलब जो मैं व्हाइट मार्क कर रही हूँ ये मिल गया है, तो कैन आई फाइंड व्हाट इज MN? कैन आई फाइंड व्हाट इज MN? कोई बताएगा मुझे? कौन बताएगा? देखते हैं. व्हाट इज MN? नो मानव. वेरी गुड आदित्य, मिला. तक्षिता वेरी गुड. दिव्या वेरी गुड. Total distance between O to M is R. Distance between O to N is L cos theta. मैंने आपको पूछा what is the length NM? Can I say M is R minus L cos theta? Everybody, R minus L cos theta.
अगर वो r माइनस एल कॉस थीटा है, अगर वो r माइनस एल कॉस थीटा है, तो कैन आई से जो लेंथ nm का है वही लेंथ किसका है, जो लेंथ nm का है वही लेंथ किसका है? वेरी गुड, bm का है। bm और nm का सेम लेंथ है, और हमें bm चाहिए क्योंकि हमारा जो पहला इक्वेशन है उसमें हमारे पास क्या है, bm है। तो bm की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, r माइनस एल कॉस थीटा। सो v ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, v ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अभी क्या लिखेंगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन, कैन आई से इट इज r माइनस एल कॉस थीटा। दिमाग चल रहा है कि नहीं? मेरे को v ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऐसा मिला। लेट्स सी v ऑफ नेगेटिव चार्ज, let's see v of negative charge. I am taking the same diagram and I am doing it here again. Could you tell me, look at the other triangle now. अभी दूसरा वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये जो ट्रायंगल है छोटू सा यहाँ पर, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है? कैन यू सी द ट्रायंगल विच इज कमिंग लाइक दिस? और ये उसका 90 डिग्री है, ये उसका थीटा है, ये उसका L होगा, ये O है, ये A है, और जो पॉइंट मैंने यहाँ लिया था वो Q है। आई होप यू कैन ऑल सी दिस डायग्राम। इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या होगा, इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या होगा? What will be cos theta? What will be cos theta? It will be OQ upon OA. OA क्या होता है, L. So OQ क्या हो गया, L cos theta. अब मुझे आप बताओ, हमारे फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, AM चाहिए। हमारे फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, हमें AM चाहिए। कैन आई से इसमें AM, लेंथ ऑफ AM is equal to the length of AQ? No, length of QM. कैन आई से जो AM है और QM, तो OQ आपको पता चल गया, OQ आपको पता चल गया, OQ आपको पता चल गया, यहां से लेके यहां तक तो R है। सो व्हाट इज द लेंथ QM? What is the length QM? Can I say it is R plus L cos theta? Can I say it is R plus L cos theta? अगर that is the case, then AM का भी same है, length of AM will also be R plus L cos of theta. इसका मतलब I can change my equation for V of minus Q. What will be V of minus Q? V of minus Q मिलेगा 1/4 pi epsilon naught. Of course, this is minus Q upon R plus L cos theta. अब मेरे पास प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, अगर मुझे नेट निकालना है मुझे क्या करना पड़ता है हमेशा, V of plus Q plus V of minus Q. I'm taking it, so this is 1/4 pi epsilon naught. Can I take Q common? Is it okay? I will get 1 upon R minus L cos theta minus 1 upon R plus L cos theta. Right? So I'm taking V net as Q upon 4 pi epsilon naught. This will become R plus L cos theta minus R plus L cos theta upon R square minus L square cos square theta, because A minus B, A plus B. यहां से आया वो। अब क्या होगा, ये जो हमारा माइनस आर और प्लस आर है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वी नेट क्या मिलने वाला है, आपका वी नेट आने वाला है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर आएगा 2L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। राइट? टेल मी
Which one is bigger, R or L? Which one is bigger, R or L? L, R is always bigger, L is always smaller. यानी कि L square cos square theta क्या हो जाएगा? Neglect किया जाएगा. So what is the net V? V net is going to be Q upon 4 pi epsilon naught. I'm going to get 2L cos theta upon R square. Anything that I can replace, this is at any point, the potential at any point. What is, yes, very good. What is 2L into Q is P. So हमारा formula क्या आ रहा है? P cos theta upon 4 pi epsilon naught R square. So the potential at any point, the potential at any point due to a dipole, the potential at any point due to a dipole is this formula. So the potential at any point due to dipole, due to electric dipole, I should write, due to electric dipole is given by, what is it given by? V is P cos theta upon 4 pi epsilon naught R square. How do I check whether my answer is correct? If theta is equal to 0 degree, what will happen? I will get V is equal to P upon 4 pi epsilon naught R square. ये तो हमने पहले भी देखा. ये कौन सा वाला पॉइंट है हमारा? एक्सिस वाला. अगर पॉइंट एक्सिस पे होता है तो हमें यही मिलता है. अगर हम थीटा को, अगर हम थीटा को 90 ले लेते हैं तो cos 90 क्या होता है? 0. यानी कि cos 90 को 0 लेना, इसका मतलब है हमने डाइपोल को परपेंडिकुलर लिया. यहाँ हमारा माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, और हमने एंगल 90 ले लिया. So therefore if theta is 90, we are getting our potential at the equator as 0. So आप चेक भी कर सकते हैं. तो यही चीज मैंने पहले डेरिवेशन में किया ताकि आपको ये वाला डेरिवेशन इजी लगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? डेरिवेशन 1 और 2 नहीं है टेक्स्ट बुक में, डायरेक्टली डेरिवेशन 3 है जो हमने अभी किया. बट 1 और 2 करना जरूरी है क्योंकि इस पहले तो समझ में आना चाहिए क्या निकालने. डायरेक्टली अगर मैंने ये बड़ा डेरिवेशन किया होता तो आप तो ये ज्यादा हो जाता आपके लिए. सो आई होप यू हैव रिटन स्लाइड नंबर 9. ये स्लाइड नंबर 9 आपका हुआ है शायद. स्लाइड नंबर 9 हुआ है सबका? शुड आई वेट और डू यू ऑलरेडी हैव दिस? ओके, स्लाइड नंबर 9 है. नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 10. प्लीज टेक इट डाउन. डायग्राम आपको एक ही बार ड्रॉ करना है. राइट साइड पे जो लिखा है वही आपको लिखना है. डायग्राम आपके रेफरेंस के लिए मैंने कॉपी करके वापस ये किया है, बट आपको नहीं करना है. स्लाइड नंबर 10 इज डन. ओके, स्लाइड नंबर 11.
Slide number 12. Slide number 12. You can write in triangle OAQ, cos theta is OQ upon OA. And that OA we have taken as L. So that defines our OQ. Completed? Yeah, OQ upon OA. Slide number 13. OA is L. OA भी L है ना, क्योंकि डाइपोल मतलब क्या होता है कि डाइपोल के सेंटर से लेके -q तक L होता है, O से लेके +q तक भी L है. सो OA is going to be L, जैसे हमने OB को L लिया था. Slide number 13. Completed. 13. फोर्टीन. लिख रहे हो कि नहीं तुम लोग? मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो व्हाट्सएप पे, मुझे देखना है क्या लिख रहे हो. मुझे भी देखना है हैंडराइटिंग. ऑगस्ट बैच का तो मैंने देख लिया, बहुत अच्छा हैंडराइटिंग है. मेरी इससे भी अच्छी है, ये तो डिजिटल हैंडराइटिंग है. हाँ, तुम्हारा स्पीड बढ़ा,
ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड बढ़ाओ। मेरा तो चैट रीडिंग स्पीड बढ़ गया है। मैं अभी चैट रीडिंग का जो स्पीड है मेरा काफी बढ़ गया है। क्या बोले। यस। ओ प्राची, नहीं है क्या बेटा? अच्छा, आई एम नॉट इन योर ग्रुप या। वही तो, ऑनलाइन ने अपने को बहुत कुछ सिखा दिया है कि नहीं ईशा? पता नहीं अथर्व, नो आइडिया बेटा। हाँ मतलब है तो भेज दो, मुझे देखना है कि तुम लोग लिखते क्या हो। मतलब मैंने अभी तक ये बैच का हैंडराइटिंग नहीं देखा। वो अगस्त वाले भेजते रहते हैं, अगस्त वाले बीच बीच में अपना नोटबुक भेजते रहते हैं। कभी कभी देखने को अच्छा लगता है, अरे हाँ भाई नोटबुक लिख रहे हैं। मतलब तुम में से कुछ लोग खाना भी खा के बैठे होंगे, डिनर हो गया रहेगा तुम लोग, कुछ भरोसा नहीं। मल्टीटास्किंग कर रहे रहेंगे। वही साइड में डिनर भी हो गया, मुझे पता है। सब पता रहता है, मैं देख नहीं सकती, मुझे दिख रहा है। कुछ लोग डिनर के बहाने भाग जाते हैं, तो जब लेक्चर स्टार्ट होता है जितने लोग रहते हैं फिर बाद में दिखाई नहीं देते, सब गए खाना खाने चले गए। मम्मी ने बुलाया, वही बहाना ले लेके बैठ जाते हैं। अरे मम्मी ने बुलाया, मना कैसे कर सकते हैं मम्मी को? बहाना ढूंढते रहते हैं। पहले उल्टा होता था, मोबाइल मोबाइल के साथ रहने के लिए बहाना ढूंढते थे, अभी मोबाइल से दूर जाने के लिए बहाना ढूंढ। हाँ, जब मैं एमसीक्यू पूछती हूँ तभी तुम मेरे को आंसर बताओ, तभी तो कोई आंसर आगे नहीं आता है। तभी तो कोई आंसर लेने नहीं आता। मैंने बोला अनम्यूट करती हूँ मैं, तुम लोग एमसीक्यू सॉल्व करो, तो सब चुप हो जाते हैं। कुछ भी ईशा, कुछ भी, कुछ भी। अगर तुम लोग अनम्यूट करके आंसर बोलोगे एटलीस्ट एक इंटरेक्शन तो होगा। अच्छा, मेरे को किसी ने भेजा है। ओ व्हाट अ हैंडराइटिंग, एकदम खतरनाक। दिव्या ने भेजा है, वेरी नाइस नीट बुक। हम्म, वेरी गुड। दिव्या का देख लिया मैंने। आई नो योर हैंड राइटिंग विल बी वेरी गुड, क्योंकि स्टेट बोर्ड वाले बच्चों का हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होता है, ऐसा है आईसीसी वालों को समझ में नहीं आता, क्योंकि उन्होंने लाइफ में कुछ नहीं लिखा रहेगा। ओ थैंक यू अथर्व। मुझे थोड़ा करना है उसमें, अभी तक मैंने काम नहीं किया है, उस पे काम करना है। ओके, सो आई होप स्लाइड नंबर 14 इज डन। स्लाइड नंबर 15, स्लाइड नंबर 15। ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ लोग कैसे है, गर्ल्स का हैंडराइटिंग थोड़ा बहुत नीट रहता है, बॉयज का मुझे पता नहीं। वो लिखने में दिलचस्पी नहीं लगते, उनका दिमाग अलग चलता है कि नहीं? गर्ल्स के पास कैसे होता है, रेड पेन होता है, फिर ग्रीन पेन होता है, ब्लैक पेन होता है। लड़कों के पास तो पेन ही नहीं होता है, वो ढूंढ के बाजू वाले से लेते हैं। मतलब एक्चुअली मैंने कभी बॉयज के इसमें वॉलेस नहीं, मतलब उनके पास पेन ही नहीं रहता। अभी लेक्चर के लिए भी वो ढूंढते रहते हैं, घर पे एक पेन मिलेगा, अब बैठ के लिखना है। गर्ल्स के पास पूरा स्टेशनरी शॉप होता है। ओ ओ, अभी लोग मेरे को नोटबुक भेज रहे हैं, टेक्स्ट बुक भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं भाई तुम टेक्स्ट? बाप रे, किसी ने टेक्स्ट बुक में ही खुदाड़ा है। ईशा, ईशा बेटा, क्या कर रहे हो? आप उधर ही चल रहा है आपका। ओ वेरी नाइस हैंडराइटिंग, हु इज दिस? ये लास्ट कौन है, 936 वाला कौन है? ये 9936 कौन है? अच्छा, अंकित यादव, ओके। बहुत अच्छा। अंकित, काफी नीट है आपका बुक। इज इट डन? 15 इज डन। ओके, आई कैन सी प्रियंका's book also, very nice प्रियंका। नीट है बुक, पढ़ने को हो रहा है। आई कैन सी वन मोर पर्सन, खुशी पांडे। खुशी पांडे, आपका भी बुक बहुत अच्छा है, नीट है। नंबर 16, नंबर 16।
Slide number 16. Last slide. हमने काफी किया है पोटेंशियल के बारे में. आई होप यू आर ऑल्सो रिवाइजिंग एट होम. पहले हमने उसका उसका डायमेंशंस निकाला, फिर ड्यू टू अ पॉइंट निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, रिलेशन विथ वर्क डन निकाला, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाला. सो वी आर गोइंग अ लॉन्ग वे. इज दिस डन? ये स्लाइड हो गया है. मुझे एक छोटा सा और डिस्कस करना है. ये somebody has sent me. Wow, with different color pens and all. Who is this? मानव, वेरी नाइस. मानव के बुक में अलग अलग कलर हैं. ऑरेंज, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, सब कुछ है. हो गया है. ये स्लाइड हो गया सबका 16. तो देर इज, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस किया था, याद है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस किया था, याद है? पेयर में लिया था. Q1 Q2 Q1 Q3 Q2 Q3, हमने ऐसा लिया था, राइट? तो अगर मैंने वही चीज ओनली पोटेंशियल निकालना है, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है. So if I have to remove only electrostatic potential due to a system of charges, then you know the formula. ये बहुत इजी है. V1 पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो हमें P पर इफेक्ट देखना है कि Q1 का क्या इफेक्ट होगा, Q2 का क्या इफेक्ट होगा, Q3 का क्या इफेक्ट होगा, Q4 का क्या इफेक्ट होगा. तो हमें नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ढूंढना है. मतलब आपको पता है हमने क्या किया है, राइट? हमने Q1 को लाया है फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, Q2 को लाया है इंफिनिटी टू दिस पॉइंट. तो हम हर एक का पोटेंशियल निकालते हैं. V1, V2, V3, V4, ऐसा n नंबर ऑफ चार्जेस रहता है. तो अगर हमें नेट पोटेंशियल निकालना है, then it becomes very simple. What will be the net potential? Here we can use superposition theorem. Just add everything up. Use the superposition principle. Take the algebraic sum of the potentials due to individual charges. So what is V equal to? V1 plus V2 plus dot 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 till the nth charge. So it becomes 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R1 plus Q2 upon R2 plus dot 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 Qn upon Rn. This is understood? Everybody has understood? This is very, very simple. This is part of your textbook. I think page 193 पे होगा शायद से. 193 के अराउंड होगा. 193, 194 पे होगा. This is the electrostatic potential due to a system of charges. तो हमने जो लास्ट टाइम किया था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस है. 193 है. ईशा इज सेइंग 193 है. So then we can find out the net potential. So this is by superposition theorem. आपको सिर्फ ऐड करना है. Yeah, this is the slide number 22. You can take a screenshot maybe, or you can write it down or whatever, but this is at least आपको ये पता रहना चाहिए. टाइटल अगर आप लिख देते हैं नोटबुक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, V1 V2 V3 लिख देते हैं और फिर टोटल लिख देते हैं तो भी बेटर है. स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ हेडिंग लिखे, डायग्राम ड्रॉ करें, V1 V2 और V3 लिखे और फिर नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखे.
Slide number 23. By superposition principle, V total is V1 plus V2 till Vn. Completed? Okay, that's it from me today. We will continue with numericals and things like next time. And we have to proceed to other derivations also. In the days to come, we have 3 to 4 derivations to complete. I hope today's derivation is very clear to you. We found out the potential today. Our main focus was on the electric dipole. And we found out what is the electrostatic potential due to a system of charges. So our next topic is going to be equipotential surfaces and electrical energy we have to go into. Yeah. So thank you so much. Bye-bye. Take care, everybody. Good night. Stay safe. Yes. Bye-bye.